نیوز بلیٹن کا آغاز اس خبر سے کہ چشتیاں میں بھی گرین الیکٹرک بسز چل پڑی۔ سستی، معیاری اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ ملنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چشتیاں میں بھی گرین الیکٹرک بسز چل پڑی ہیں۔ سستی، معیاری اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ ملنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سستی، معیاری اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ ملنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات زاہد حسین ہاشمی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ چشتیاں میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر گرین الیکٹرک بسوں کی جدید اور ماحول دوست سفری سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ منصوبے کا مقصد عوام کو معیاری، محفوظ اور کم لاگت ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ گرین الیکٹرک بسیں چشتیاں شہر کے مختلف علاقوں اور قریبی مضافات سے مسافروں کو نہایت مناسب کرائے پر بہاول نگر لے کر جائیں گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے اور آرام دہ سفر سے طلباء، مریضوں، ملازمین اور عام شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بہت خوش ہیں، جنہوں نے ہم غریبوں کے لیے یہ گاڑیاں چلائی ہے۔ ہم اپنے ثانیہ الحق باجوہ ایم این اے چشتیاں کے ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ ہم چشتیاں سے 20 روپے میں ہم چشتیاں سے بہاول نگر جائیں گے، جو 200 روپیہ والا کرایہ سمجھو ہم 20 روپے میں ادا کریں گے۔ شہریوں نے گرین الیکٹرک بسوں کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مثبت اور قابل تحسین قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اسی طرز پر انہیں مزید ٹرانسپورٹ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بہت پرسکون گاڑی ہے اور بالکل مزہ آ رہا ہے اس گاڑی میں۔ 20 روپے میں ہم جائیں گے بہاول نگر۔ ہم مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ثانیہ الحق باجوہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بسوں میں ایئر کنڈیشن ماحول، آرام دہ نشستیں، جدید سیکیورٹی کیمرے اور ٹریکنگ سسٹم شامل ہیں۔ سروس کے آغاز سے نہ صرف سفر آسان ہوگا بلکہ ایندھن کی بچت اور آلودگی میں کمی بھی متوقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد حسین ہاشمی، روہی، چشتیاں۔ جنوبی پنجاب بھر میں بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی چوتھے روز بھی ہڑتال۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے بازاروں میں اشیاء کی قلت ہونے لگی۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے دہاڑی در طبقہ اور ٹرک مالکان کے معاشی حالات بھی بگڑنے لگے۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہڑتال کو سنجیدگی سے نہ لیا تو سڑکیں بلاک کر دیں گے۔ میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث ترسیلی نظام بھی شدید متاثر ہونے لگا۔ بہاولپور بائی پاس روڈ پر ٹرانسپورٹرز کی کثیر تعداد ہڑتالی کیمپ میں موجود رہی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹرانسپورٹ چلانا بند کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ادھر ملتان کے سیاسی رہنماؤں نے ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانوں کو تشویشناک قرار دیا۔ سابق ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کی روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ قانون پر عمل درآمد کرنا ہر شہری کا فرض ہے، لیکن جرمانوں میں بے تحاشا اضافہ بھی تشویشناک ہے۔ حکومت جرمانوں میں کمی کا اعلان کرے۔ دوسری جانب بہاولپور میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے دہاڑی دار طبقہ بے روزگار ہونے لگا۔ ٹرک مالکان کے معاشی حالات بھی بگڑنے کا خدشہ۔ ٹرک عملے کا کہنا تھا کہ ہڑتال کے دوران مالکان کی جانب سے معاوضہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ روزانہ صبح اڈوں کے چکر لگا کر خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز نے چوتھے روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ عبدالسلام ناصر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے لوکل سطح پر تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن مرکز میں ان کے جائز مطالبات تاحال نہیں مانے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ہڑتال کو سنجیدگی سے نہ لیا تو سڑکیں بلاک کر دیں گے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ڈرائیورز ہیلپرز پر بھاری پڑنے لگی۔ کئی روز سے جاری ہڑتال کے باعث ڈرائیورز، ہیلپرز اور منڈیوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ سے جڑے دہاڑی دار بھی بے روزگار ہو گئے۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ ان کا چولہا کیسے جل رہا ہے یا پھر خالی جیب کے ساتھ دل بھی جل رہا ہے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جودیانہ۔ گڈز ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کے باعث ڈرائیورز، ہیلپرز کئی روز سے بے روزگار۔ منڈیوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ سے جڑے دیہڑی داروں کو بھی کام نہیں مل رہا۔ بے روزگار ملازمین کا کہنا ہے مالکان کی طرف سے ہڑتال کے دوران کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ روزانہ صبح اڈوں کے چکر لگا کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حکومت اور ٹرانسپورٹر مالکان میں معاہدہ نہ ہوا تو معاشی حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ دن ہو گئے نا ادھر کھڑے ہاں، کوئی کام نہیں، کوئی لینی نہیں، کوئی دینی، پریشان کھڑے ہاں، گھر تو بھی دور کھڑے ہاں۔ کوئی ادھر مسئلہ ہے بھی ٹرانسپورٹ ساریاں گڈیاں بند کھڑیاں نے، کوئی نہیں جا رہا نہ آ رہا۔ ساڈا کی گناہ ہے، اسی کی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اے مریم نواز تیری مہربانی، تو مہربانی کر دے ساڈے حق۔ یہ حکومت ریلیف دے، ایک یہ طبقہ رزق حلال والا طبقہ ہے جس کی طرف ہمارا جو افسر بالا ہے نہ تو وہ توجہ دے رہے، نہ ہی جو ہمارے سیاستدان ہیں۔ اس ٹرانسپورٹ چھوٹا طبقے سے لے کے بڑے طبقے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔
गुर्द ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से ट्रक अड्डों पर वीरानियों के डेरे हैं। जखीरा बाईपास मोड़ पर कायम मरकजी अड्डे पर काम करने वाले 600 से ज्यादा मुलाजमीन का रोजगार मुतासर हुआ। वो एक हफ्ते से काम न मिलने पर मायूस हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से गैर मामूली हालात दरपेश हैं। ट्रक बंद होने से 600 घरानों के चूल्हे बुझ गए हैं। बस यही है कि हम चोरी डकैतियों पे शुरू हो जाएंगे और 2 नंबर काम करेंगे। फिर हुकूमत कहेगी ये आप 2 नंबर काम करते हैं, आप अंदर चले जाओ। ठीक है, हमें रोजी करने दो और रोजी करने के लायक छोड़ो। हम रोजी करें, हम यहाँ पे रोजी करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे। दूसरी तरफ कुछ ट्रांसपोर्ट मालकान ने स्टाफ के शाना बशाना खड़े होने का अंदिया दिया। रोही के पूछने पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन जनूबी पंजाब ने ऐलान किया कि हड़ताल जारी रहने की सूरत में मुलाजमीन की 2 माह तक किफालत की जाएगी। कैमरामैन शासक लैन के साथ ताहिर जोधाना, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में कवानीन की सख्ती ने शहरियों को सुधारना शुरू कर दिया। सेंटर्स में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने लगे। सिर्फ 10 रोज में 15,000 से ज्यादा शहरियों ने लाइसेंस बनवा लिए। तफसीलात आसिम सदीक की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार दिए जाने के बाद लाइसेंस ब्रांच में शहरियों का रश पड़ गया। दफ्तर के बाहर सुबह सवेरे ही लाइसेंस बनवाने वालों की कतारें लग जाती हैं। रोजाना 1000 से ज्यादा शहरी लाइसेंस बनवाने के लिए ब्रांच पहुंचने लगे, जबकि सिर्फ 10 दिनों में 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद साजिद के मुताबिक शहर में ट्रैफिक हादसा की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन की पासदारी की मुहिम के इंतहाई मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमने एक तो अपने लाइसेंस ब्रांचेस का टाइम बढ़ा दिया है। दूसरा तकरीबन 9-10 दिनों में 10 से 12,000 लाइसेंस हम इशू कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों की सहूलत के लिए हमारे पास जितना मेरे पास अवेलेबल स्टाफ है, वो जितने मेरे पास कंप्यूटर थे, वो तमाम इस वक्त वर्किंग पोजीशन में है। ड्राइविंग लाइसेंस की सख्ती ने शहरियों को कानून की तरफ मुतवज्जा तो कर दिया, मगर लाइसेंस ब्रांच में बढ़ता हुआ रश इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। ट्रैफिक पुलिस का मौकफ है कि शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सद्दीक, रोही, रहीम यार खान। सरगोदा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस पुल 11 की स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री भी शदीद मुतासर। मुल्क भर के सरकारी और निजी तामीराती मनसूबों के लिए पत्थर की सप्लाई बंद, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। तफसीलात शेख उस्मान की रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस सरगोदा स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री से पत्थर की सप्लाई बंद हो गई है। सरकारी व निजी तामीराती मनसूबे ताखीर का शिकार होने लगे हैं। स्टोन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी खालिद अराई ने हड़ताली कैंप में ट्रांसपोर्टर से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने आयद करना सरासर नाइंसाफी है। मुल्क में पहले ही गुर्बत और अफलास के डेरे जमा रखे हैं, ऐसे में भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। मेरा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि जितने भी ऑर्डीनेंस है कवानीन बनाए ने असी भी पंजाब के शहरी और पाकिस्तानी होने के नाते असी सारे कवानीन मनन वाले हैं, लेकिन खुदारा हुकूमत ऐसे कानून बनाए जो कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक पॉसिबल भी हों। उन्हें लाइसेंस वाला प्रॉब्लम इतनी जितनी की गड्डी है और जितनी पंजाब को जरूरत है खाओ तरक्याती काम ने खाओ जिस वाले तो भी ने इतना फौरी तौर के उत्ते HGV लाइसेंस वो जारी कर दें। असी इंशाअल्लाह साडा कोई हुकूमत मत्था नहीं, साडा कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में शामिल भारी जुर्मानों की शिक खत्म की जाए और ट्रांसपोर्टर्स के साथ होने वाले मुज़ाकरात का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि लाखों अफराद का रोजगार बहाल हो सके और मुल्क की मैशियत में मजीद नुकसान से बचाया जा सके। असी हुकूमत के खिलाफ नहीं, असी कानून नूं मनण वाले हैं और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। खुदारा हुकूमत कानून बनांदियां ने आवाम लई, उन्हां नूं फैसिलिटेट करन लई, ना कि उन्हां दे उत्ते जिहड़ा है ना एक पहाड़ खड़ा कर दिता जाए कि असी अपनी रोजी और रोटी भी कमा सकीए और मुल्क पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के अंदर अहम किरदार भी अदा कर सकीए। साडे नाल जिहड़े साडे हुक्मरान बाला ने उन्होंने जिहड़े जिहड़े वादे कीते, जो कुछ चाहे सियासी ने चाहे ब्यूरोक्रेट्स ने साडे नाल ताउन करन। एहतजाज से खिताब करते हुए स्टोन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दीगर जिम्मेदारान का कहना था कि जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। नौशहरा जदीद में जानी बचाने वाली अद्वियत मजीद महंगी हो गई। कफ, सिरप, मिर्गी की दवाएं, एंटीबायोटिक्स, बुखार, फ्लू और शुगर समेत कई दीगर अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। इलाज महंगा होने से अवाम शदीद परेशानी का शिकार। तफसीलात मलिक हबीब लां की इस रिपोर्ट में।
कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मेडिकल स्टोर मालकान के मुताबिक कफ सिरप जो एक हफ्ते कबल 95 रुपए में दस्तयाब था, अब 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मिर्गी के सिरप 250 से बढ़कर 313 रुपए का हो गया है। पैराडोल एक्स्ट्रा 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए तक जा चुकी है। पिल्मोनाल 165 रुपए से 200 रुपए हो गया है, जबकि शुगर की अहम दवा जो 600 रुपए की थी अब 850 रुपए तक पहुंच गई है। का कोई लिमिट है ही नहीं। जो सिरप था, एक मिसाल पिछले हफ्ते एडालिन सिरप था 95 का, अब वो 150 का हो गया। ऐसे ही जो मिर्गी के दौरों के लिए टेग्राल टैबलेट थी, उसका रेट 500 हो गया। हैप्पी वाल अब 2000 सीधा 2300 का डब्बा। मेडिकल मालिकान का कहना है कि फार्मा कंपनियों ने अचानक रेट्स बढ़ा दी हैं। अद्वियात की कीमतों में तेज रफ्तार इजाफे से गरीब मरीजों के इलाज को शदीद मुतासिर किया है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा मलक हबीब लॉन्ग, रूही, नौशहरा जदीद, जिला बहावलपुर। गाजी खान की हल्का पीपी 289 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी अमला तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद सारे इलेक्शन की निगरानी करेगा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शकील अहमद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नासिर मकसूद रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, एसी तौसा मोहम्मद जुनैद खान और एसी जहांपुर साकिब अदनान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब में अमला की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। अमला की तब्दीली की वजह सामने ना आ सकी। मुल्तान की बड़ी मार्केट्स में मसाइल जूं के तूं बरकरार। किसी मार्केट में सड़कें टूटी फूटी हैं तो कहीं तजावुजात की भरमार है। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इंतजामिया ये मसाइल हल करने में नाकाम है। इस हवाले से देखते हैं फराज रमजान की ये रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में तजावुजात की भरमार। टिम्बर मार्केट में दुकानदारों ने 25 फुट बाहर तक सामान रखा हुआ है। पीरा फोर्स टिम्बर मार्केट से तजावुजात का खात्मा करवाने में नाकाम, जबकि सड़क के दरमियान में ट्रकों से लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, जिससे दीगर दुकानदार परेशान होते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जिसका जहां दिल करता है अपना सामान उतरवा लेता है, कोई पूछने वाला नहीं। की रवानगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जो कस्टमर इस साइड से आता है वो तो बिल्कुल भी जो है ना रुकता नहीं है, तो उसे जगह ही नहीं मिलती, ना गाड़ी पार्किंग की मिलती है, ना उसके अलावा जो है वो मतलब कहीं दुकान पे रुकने की कोशिश करता भी है तो लेकिन जगह नहीं मिलती उसे। दूसरी तरफ मार्केट कमेटी की गफलत के बायस गला मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गला मंडी की सड़कों पर सीवरेज का पानी भी जमा रहता है, जिसकी वजह से मंडी में ताफुन फैला हुआ है। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं सीवरेज का पानी जमा होने से खड्डे नजर नहीं आते और गाड़ियां उलट जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। बहुत ज्यादा परेशानी है। एक तो रोड भी हमारा सारा ये बंजर हो चुका है, पाइपलाइन जब से डली है दोबारा रोड भी नहीं बना, ऊपर से देखिएगा नाजायज तजावीज़ात की भरमार है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तंग होता है, माल घिर जाता है, माल गिला हो जाता है, बड़ी तकलीफ होनी है। जब से पाइपलाइन डली है हमारे रोड पे जो भी लोडिंग होती है, गाड़ियां बैरियरियां जो खोते वगैरह लोडर रिक्शे हैं सब वो बैठ जाते हैं, बारिश होती है। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि टिम्बर मार्केट से तजावुजात का खात्मा और गला मंडी में सड़कों की तामीर और मुरम्मत करवाई जाए। दीगर बड़ी मार्केटों के मसाइल भी फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मियामाल में बस टर्मिनल का तामीराती तहाल काम मुकम्मल ना हो सका। टर्मिनल का तामीराती काम 27 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होना था, मगर प्राइस वेरिएशन के बायस लागत 42 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियामाल इंतजामिया की मुबैना नाअहली। शहर में बस टर्मिनल का तामीराती काम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। टर्मिनल की तामीर 2022 में शुरू हुई और ये काम 27 करोड़ रुपए में मुकम्मल होना था, मगर काम सुसरवी का शिकार रहा और प्राइस वेरिएशन के बायस मजीद 5 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड जारी हुए, मगर फिर भी काम बर वक्त मुकम्मल न हुआ। इसके बाद लागत बढ़कर 42 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके बावजूद तामीराती काम अभी तक मुकम्मल न हो सका। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि अर्जी बस स्टैंड पर सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। पीने का साफ पानी, बैठने के लिए बेंचेस और वॉशरूम की सहूलत भी दस्तयाब नहीं। इसी वजह से खवातीन शदीद मुश्किलात से दो चार रहती हैं। अड्डे का काम नामुकम्मल है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर हैं वो बाहर दीगर जगहों पर रुल रहे हैं। मुसाफिरों को सहूलियात नहीं है और जो भी मुसाफिर आता है ना उसे पीने की पानी की सहूलत है, ना उसे वॉशरूम की सहूलत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फोकस करें इसके ऊपर और इस अड्डे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को परेशानी से बचाया जा सके। महकमा बिल्डिंग की नहली सुस्ती है क्योंकि 2022 का मनसूबा 2 साल मुकम्मल, 2025 भी गुजर गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और साथ साथ इस पर लागत बढ़ती जाए जो हुकूमती खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। अब ये भी समझ आया कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं,
तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, जो दीगर काम जारी हैं, सफाइयाँ सुथराई, तो उसको तवज्जो देनी चाहिए, अड्डा जारी मुकम्मल, क्योंकि ट्रांसपोर्टर से टैक्स वसूल किया जा रहा है। जो गाड़ी लेते हैं वो पर्ची लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलियात नहीं है, मुसाफिर को भी परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बस टर्मिनल का काम मुकम्मल करके फौरन फंक्शनल किया जाए ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। मुबारकपुर और मियां चंदू में पुलिस के ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जियों पर शहरियों को भारी जुर्माने। दूसरी जानिब कोट सुल्तान में गैरिसन पब्लिक हाई स्कूल के तलबा के लिए ट्रैफिक कवानीन आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। उधर खानेवाल के शहरियों ने पुलिस एहलकारों से भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की अपील कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुबारकपुर के इलाका मुसाफिर खाना में भी पुलिस ने गाड़ियों की सख्त चेकिंग की। रूट पासिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रूट और दीगर जरूरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई। उधर मियां चंदू, तलंबा और इर्द गिर्द के इलाकों में पेट्रोलिंग पुलिस की सख्त कार्रवाइयां। दौरान चेकिंग बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स और पब्लिक पेपर लगी गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए। दूसरी जानिब कोट सुल्तान में गैरिसन पब्लिक हाई स्कूल के तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी गई। SHO मोहम्मद अशाम का कहना था कि कवानीन की पाबंदी करना हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। उधर रुझान के नवाई इलाके उमरकोट में तजावजात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। महकमा इंक्रोचमेंट ने तमाम गैर कानूनी तजावजात हटा दिए। कार्रवाई के बाद शहरियों और दुकानदारों ने इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। दूसरी जानिब ईसा खैल में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनसिपल कमेटी अमले ने दुकानों के बाहर कायम तजावजात गिरा दी, शेड और थड़े मिसमार कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल मुफ्ती अब्दुल कवी के मुरीदान भी कब्जा माफिया के मुतासरीन में शामिल। मुफ्ती अब्दुल कवी अपने मुरीदों की जमीनों पर होने वाले कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई। मुल्तान से देखते हैं महर इमरान की ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल मुफ्ती अब्दुल कवी कब्जा माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। मुल्तान में मुफ्ती अब्दुल कवी आज लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत दरखास्त जमा करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उनका कहना था कि वो अपने मुरीदों की जमीनों पर होने वाले कब्जे के खिलाफ दरखास्त लेकर आए हैं। कानून मोहतरमा ने बनाया है, मैं इसकी जितनी जनाब तारीफ करूं उतना कम है। क्यों? इसलिए कि मेरे यहाँ जहाँ भाई होता है वो बेचारे बहरे जो है उन बेचारों को रकबा नहीं मिलता, कब्जा भाई कराया जाता है। इसी तरह फुफ्फी का रकबा, इसी तरह वालदा का रकबा। मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने इमाम मसाजिद के लिए जो वजीफा मुकर्रर किया वो इंतहाई खुश आइंद कदम है, जबकि जमीनों के कब्जे छुड़वाकर मुतासिरीन को फौरी रिलीफ देना हुकूमत पंजाब की संजीदगी का वाज़ेह सबूत है। इमाम साहब के लिए जनाब जो 25,000 वाली बात की, मैंने इसकी भी तायद की, क्योंकि इमाम साहब का काम होता है आके नमाज पढ़ाना, न वो खतीब होते हैं न वो मुकर्रर होता है। अगर कोई उलमा कह रहे हैं कि जनाब ज़हन साजी के ऊपर किसी तरह का पाबंदी हो जाएगी, ये उनकी बात गलत है। ये खतीब को पैसे नहीं दिए जा रहे, ये इमाम साहब को दिए जा रहे हैं, और इमाम साहब का माना है आके नमाज पढ़ाना। सियासत पर बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हें अपनी जमात में शामिल करना चाहती है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त इनकी किसी भी सियासी पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश नहीं। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोई न्यूज, मुल्तान। रहीम जर खान में सरकारी खजाने को चूना लगाने का सिलसिला बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने 80 लाख में तामीर होने वाले स्कूल के कमरे 25 लाख में बना लिए। नून लीगी रहनुमा और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में नए क्लासरूम्स का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात आमिर भट्टी की रिपोर्ट में। रहीम यर खान में महकमा स्कूल एजुकेशन जिला के सरकारी स्कूलों में कम लागत में मायारी तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। महकमे ने वो क्लासरूम जो आम तौर पर 80 लाख रुपए में तामीर होते थे, जदीद तामीराती तकनीक के जरिए सिर्फ 25 लाख रुपए में मुकम्मल करा दिए, जिससे सरकारी सतह पर बड़े पैमाने पर माली बचत मुमकिन हुई। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में नए तामीर शुदा 2 क्लासरूम्स का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जोबिया मुदस्सर और स्कूल प्रिंसिपल मैडम राशिदा कामिल ने भी खुसूसी शिरकत की। मियां इम्तियाज अहमद ने इस मौका पर बताया कि जिला के 327 सरकारी स्कूलों में मजमूई तौर पर 482 क्लासरूम्स इंतहाई कम लागत में तामीर किए गए, जिन्हें जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मायारी रोशनी, वेंटिलेशन और तालीमी जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है। CM मरियम नवाज साहबा का ये विजन है कि हमारे स्कूलों को जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं या उनको एडिशनल क्लासरूम है वो मुहैया किए जाएं, और इससे पहले बहुत इसमें पैसे का भी ज़िया होता था और उतनी क्वालिटी के वो रूम्स नहीं बनते थे, वो स्कूल्स नहीं बनते थे जितनी क्वालिटी में अब अपनी मदद आपके तहत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे CEO की ज़ेर निगरानी ये
रूम्स बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि 12.5 लाख में आजकल ये कमरा बनना और इतने स्टैंडर्ड का और इतने अच्छे मटेरियल के साथ, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है। और ये हमारी सीएम का क्योंकि विजन भी है कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ और बेहतर क्वालिटी के साथ काम किया जाए। तकरीब के दौरान मियां इम्तियाज अहमद ने नई क्लासरूम्स में केक काटकर इस मंसूबे की तकमील पर इजहार मुसरत भी किया। शुरका ने इस इक़दाम को तालीम दोस्त पॉलिसी की शानदार मिसाल करार देते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत की तरफ से इस कदर शानदार और पायदार तामीरात काबिल तहसीन है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की बहाली के मिशन पर गामजन। अहमदपुर शर्किया, लोधरा के रोडपक्का, बहावलपुर और रहीम यार खान के सैकड़ों खानदानों को इमदादी रकम के पे ऑर्डर दे दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में 505 मुतासरीन को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नबीद हैदर का कहना था कि चेक्स की तकसीम का मकसद मुतासरा खानदानों की माली इमदाद और बहाली है। लोधरा के 515 सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकम भी तकसीम की गई। डीसी मोहम्मद अशरफ ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि आखिरी सैलाब मुतासरा खानदान तक इमदाद पहुंचाई जाएगी। जिस मुतासरा खानदान की यहाँ रसाई नहीं, उसके घर जाए। उधर के रोडपक्का में असिस्टेंट कमिश्नर असगर अकबाल लगारी ने सैलाब मुतासरा खानदानों को माली इमदाद के चेक तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बहाली प्रोग्राम के तहत 365 मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए गए। अगले मरहलों में मजीद मुतासरा खानदानों को बहाली प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। शहरियों का कहना था कि बहाली का ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुतासरीन बहुत जल्द अपने मामूलाती जिंदगी की जानिब लौट सकेंगे। दूसरी जानिब बहावलपुर में डीसी सैयद हसन रजा ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम करने की तकरीब डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुई। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया। तकरीब में ADCR तैयब समी खान और AC खलील अहमद भी शरीक हुए। जबकि रहीम यार खान में भी जिला के 255 मुतासरा खानदानों में पे ऑर्डर तकसीम किए गए। तहसील रहीम यार खान और खानपुर के 53 और लियाकतपुर के 202 खानदानों में पे ऑर्डर तकसीम किए। पोलियो से पाक मुआशरे कमीशन जनूबी पंजाब में 3 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का 15 दिसंबर से आगाज। मुल्तान समेत तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने मुहिम के इंतजाम का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला मुल्तान में 3 रोजा कौमी पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से शुरू होगी। जिला भर में 5 साल से कम उम्र 10,21,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। उधर बावलपुर में डिप्टी कमिश्नर हसन रजा की जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम बारे जायजा इजलास हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर ने इजलास में बताया कि जिला बावलपुर में 15 दिसंबर से पोलियो से बचाव की मुहिम शुरू होगी। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने 15 से 18 दिसंबर तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया। लिया में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर बखर एहसान अली जमाली की सदारत में इंसदादे पोलियो कमेटी का इजलास हुआ। मेंबरान अमन कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने भी इजलास में शिरकत की। को बताएं कि बस्ती मलूक एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में एयर शो जदीद मॉडल शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर गुलाम अली ने कहा कि एयरफेयर से जनूबी पंजाब में एविएशन इंडस्ट्री को नया फरोग मिलेगा। एयरफेयर के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाली टीम्स को कैश प्राइज भी दिए गए। मजीद देखते हैं मिर्जा जमील की इस रिपोर्ट में। बस्ती मलूक एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में एयर एविएटर सोसाइटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा एयर फेयर शानदार अंदाज में अख्तिताम पजीर हो गया। रंगारंग फेस्टिवल में तलबा, वालिदैन, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों और शोबा एविएशन से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाली टीमों को कैश प्राइज भी दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी है। ये यहाँ पे अपने जहाज़ों का मैंने डिस्प्ले भी किया हुआ है। तकरीब में रिमोट कंट्रोल मॉडल एयर शो, मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट समेत मुख्तलिफ इल्मी और तकनीकी स्टॉल्स ने शुरका की खुसूसी तवज्जो हासिल की। मुल्तान RC फ्लाइंग क्लब के सैयद मोहम्मद हैदर गर्देजी, डॉक्टर याकूब नासिर, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान, गोहर नवाज सांगी समेत दीगर माहिरीन ने इल्मी मुजाहिरे पेश किए और तलबा की रहनुमाई की। सर है 125 cc है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मॉडल है ये भी 125 cc है, ट्विन सिलेंडर। ये हम इसको हाई ऑक्टेन पे चलाते हैं।
डायरेक्टर गवर्नमेंट पाक जर्मन इंस्टीट्यूट ज़ियाउल हसन का कहना था कि हर साल उनके इदारे से तलबा भरपूर अंदाज से इस इवेंट में शिरकत करते हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी में एयर फेयर था ताकि हम एविएशन मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम को प्रमोट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानें और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जाने इस प्रोग्राम को। आज का जो शो था एविएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। I mean learning and the enjoyment at the same point. एयर फेयर बहुत अच्छा था। साउथ पंजाब में ये सबसे बड़ा एयर फेयर हुआ है। यहाँ पे जिन लोगों को भी हमने बुलाया उन्हें बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत इंजॉय करा। इवेंट के अख्ताम पर शुराका ने एयर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और एयर एविएटर्स सोसाइटी की काविशों को भरपूर सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी ऐसे मयारी और तकनीकी प्रोग्राम जारी रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा मोहम्मद जमील, रोही, बस्ती मालूम।